Sati Babu, you know, there is one man called Yogi Adityanath. You understand? There is one man called Yogi Adityanath. Have you heard about him? Yes. And he tells he will bury all the evils under the ground. And he will bring all the best above the ground. And the whole world will be emulating his path and really following his footprints. He is really the wisest man ever born on earth. You know, my guru and guide, whom I call my godfather, he was Colonel Ranga Rao sir, a great man. I had direct communication with him. He was the richest man in India, one of the richest real estate developer. But he used to have every morning conversation. It was because GVK Reddy. Because GVK is a real estate man and they are all real estate man, and GVK one of the richest men in India, you know. So, sir used to tell about Yogi Adityanath. He was a great fan of Adityanath. He said, everyone talks about how he's behaving, Bulldozer Baba and all, but nobody knows his career. He was record breaker, 100 out of 100 in mathematics, chemistry and physics. He's a science graduate like Jawaharlal Nehru. You understand? He was in Delhi University. He was the best boy, most intelligent boy. His IQ is more than anybody else. UP and Bihar are the worst state. People are good. People are machine. You know Satnarayan? You are a doctor. What is your body? Machine. What is the body? Intricate and accurate machine. But programming has to be done. But Biharis and Uttar Pradesh, Bali, they are programmed in a negative way. What is their programming? Greed. Speak out. Greed, anger, hatred, jealousy, cynicism, mental arrogance, too much of selfishness. And politicians are selfish too. So these two states remain backward. You see Telangana, the best. Andhra now it has become best. Tamil Nadu the best. Kerala the best because of education. Because of some good people must have come here and tried to really train their citizens. Satnarayan, I tell you, Jai Telangana! Jai Telangana! Why I say this? I stay in the forest. I love all, respect all. There are few people who are selfish, want to hate me. All are loving me. But here in Bihar, from Telangana, they will kill you, murder you, and take away your 2000-year car and 500-year-old shoes. They will rob you, murder you, kill you, and throw you off. And no trace will be there. Government will not be bothering about it. Telangana, I am moving proudly everywhere in the forest. And I move not only alone, a lathi, because I love birds with animal plants. And Nani city is a place where there are a lot of pools who comes, kills peacocks even kundel and all. I'm protecting them, guarding them. And had I been in Bihar, they could murder me and throw me in the forest. But they are afraid of me. Why? They have a lot of respect for law and order. They have lot of respect for people, you know. Yes. Why I'm talking all these off the side? I started with Yogi Adityanath. Yogi Adityanath was given the responsibility to tame these wild beasts. They are best human beings, but worst programming of their mind. Criminals, murderers. So in the assembly house, once the heated debate was going on between the Ravana and Rama, Kansa and Krishna, he was playing always the role of Rama or Krishna, a hero. Yogi Adityanath is a hero. He challenged Akhilesh Yadav. You are a selfish dynastic ruler. Mulayam was a selfish man. He was dividing the society on religion because he wanted to please the Muslim community. That's why you are winning, and Hindus are fools. They say, I am Yadav, I will give vote to Yadav. But he said, Yadav is my slave, he is my caste, so he will never betray me. But Muslim I have to please, Tushti-karan. You understand? I told I will not do that. I don't care for the 20% Muslims. I will care for every good human being. I will not talk on religion. I will talk on the majority. And those who are criminals, without discrimination on caste, creed, race and religion, सालों को मिट्टी में मिला दूंगा. क्या करूंगा? मिट्टी में मिला दूंगा. असेंबली में बोला. समझ रहे हो क्या? वो भेदभाव नहीं करता भाई. A good man is a good man, a bad man is a bad man.
A good man is good because of his good thinking. A bad man is a bad man because of his bad thinking. Nobody is permanently good and bad. I give you a big example of this. There is one come G.V.K. Reddy, Ganpati Venkat Krishna Reddy. He is a very good man when his mind was pure. He respected me, loved me, broadcasted, proclaimed the best man on earth, the most disciplined on earth. And then there is a crooked man, the reverse of that, the most wicked man, bloody son of the bitch on the earth, Krishna Maharaj, chor, sala, chor, mother chor, chor, mother chor, chor. एनटी रामाराव का पूरा पैसा चोरी करके भाग गया, उससे वो अंपायर बनाया। राजू था इसीलिए उसके पास कुछ जमीन था। वो मुझसे नफरत करना शुरू किया। वो रमना राव कुत्ता को बोला, लिखो, ही इज इनडिसिप्लिन, ही इज इररिस्पॉन्सिबल, ही इज द वर्स्ट मैन। और कृष्णा रेड्डी दिमाग में बैठा लिया और बोला, मारो साले को, मार साले को, कुत्ता मिन के काट साले को। देख, जीवी के महान मैन पोल्यूटेड विचार हो गया दूसरे के पोल्यूशन से, साले का अपना ओरिजिनल माइंड नहीं था। अरे मादरचोद, मुझे पोल्यूट करके दिखा। मैं कभी भी बुद्धि रहूंगा, मैं कभी भी विवेकानंद रहूंगा, मैं तेरा चमचा नहीं करूंगा कि तुम बोलेगा वही सही है। अरे जो सच है वही सही है। मैं हूं न्यूटन, ग्रेविटी इज ओनली ट्रूथ। यू से नो ग्रेविटी, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। यू से नो रिलेटिविटी, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज आई एम ए साइंटिस्ट। आई डोंट चेंज माई सेल्फ बिकॉज आई नो मन की शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कभी कम होना। सभी सत्य के रास्ते पर चलेंगे। संकशद्वम संबद्धम समोर मानासी जानताम असदो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योति गम्य मृत्यु माँ अमृतम गम्य। अरे मेरा अपना सोच है यार। देखो जीवी के कैसा बदल गया, समझ रहे ना तुम। और तुम बोलोगे कहाँ से सीखा? बुद्ध से सीखा। कोई भी आदमी अच्छा नहीं, कोई आदमी बुरा नहीं। जब बुरे दिन आते ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है, बोल, सारा विवेक मर जाता है। रावण कितना ज्ञानी था। जब उसका विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब उसका विनाश आया ना, तो सीता को रेप करने के लिए पकड़ के ले गया। क्या किया भगवान जानता है। भगवान मीन्स मोदी का और योगी का भगवान जानता है। मेरा भगवान कुछ नहीं है। मैं तो जानता हूँ एक लेडी को पकड़ के ले जाऊँगा और तुम सेक्स के लिए लेगा तो ठोके होगे। आई डोंट नो, आई हैव नो प्रूफ, एक्सक्यूज मी हिंदू फैनेटिज्म। मैं नहीं जानता भाई, लेकिन रह गया था इसीलिए क्योंकि उसकी बहन शूर्पणखा को जब वो सेक्स कराने गई, लक्ष्मण को तो रिफ्यूज कर दिया। लक्ष्मण बहुत ब्रह्मचारी था। जब सीता को हरण करके ले जा रहा था तो उसके पैर के जो पावेज थे, राम पूछा, देखो इसको। मैं तो ठोका केवल, पैर तो देखा ही नहीं उसका, सही चीज़ देखा। समझ में नहीं आया? तो सही चीज़ देखा, समझ गए क्या? नहीं समझा? तुमकी सीता माता है ना, हमारा लिए कोई माता और पिता नहीं है। जो ज्ञानी है वही सब कुछ है। ये सब झूठी कहानी है। ये तुलसी देखा था क्या कि कौन ले गया क्या किया? फरेब है ये सब। सत्य के पीछे मैं भागता हूँ, फरेब के पीछे नहीं भागता हूँ। सो तुलसी ज्ञानी था, मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन मैं अपने विचारों पर चलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। साइंटिफिक मेरा थॉट होता है। लक्ष्मण बोला, सीता मेरी माँ थी, मैं केवल उसका पाय नहीं पहचानता हूँ। नित्य प्रातः काल उठ के मैं माँ के चरणों पर अपना सर रखता था, उसका पाय केवल पहचान सकता हूँ। बाकी उसके गिलमलहार सोने के गहने नहीं जानता हूँ। भ्राता श्री राम। राम बोले, मैं तो उसका चांद जैसा मुखरा ही देखता था, मैं कहा को उसका गिलमलहार देखो, मैं तो सही चीज़ देखता था। लक्ष्मण लक्ष्मण महान थे। कहने का मतलब है जब विचार भ्रष्ट हो गया है ना, तो बॉडी क्या है रे? ये सेलफोन है, बोल, इसमें लगाओ पोर्नोग्राफी, फटाफट आएगा, ठका ठक आएगा। इसमें लगाओ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आएगा, ग्रेविटी बोलो लगाएगा। मशीन माइंड का ये मैं जानता हूँ सत्य को। कोई मनुष्य अच्छा नहीं, कोई मनुष्य बुरा नहीं। जब विचार अच्छे हैं तो महान है, जब विचार बुरे हैं तो घटिया है। हमारा गुरु जेम्स एलन लिखा किताब एज ए मैन थिंक, उसमें लिख दिया, दो आदमी है और कोई भी परफेक्ट नहीं है, 50-50, कभी अच्छा किया हो कभी बुरा किया हो। कोई भी ऐसा नहीं जो पूरा अच्छा किया हो। तो कभी कभी जो बुरा आदमी है उसका ज़िंदगी बहुत खुशहाल होता है। सुब्रम रेड्डी की तरह प्लेन पर चलता है, करोड़ों करोड़ों रुपया चोरी से कमाता है, धोखे से, माइंस का अलॉटमेंट करके। और उसका चचेरा भाई बोलता है, देख मेहनत करके मैं कमाए, चोरी करके साला एक दिन में कमाता है 100 करोड़। आज जो नहीं कमाया 100 करोड़ चोरी करके खुशहाल है,
भीख नहीं मांगता, ये साला भीख मांग रहा है। अरे चोरी के माल, चोरी में जाते जेल जाएगा साला, भीख है दर दर भिखारी। तो जेम्स वाले ने ही बोला, जब कोई चोर एरोप्लेन में उड़ता है और मज़ा लेता है तो तुम बोलते हो देखो यार ये पाप की नगरी है, जो पाप करता है वो भोगता है आनंद, और जो अच्छा करता है बेचारा दुखी होता है। तो बोला देख भैया, दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो हमेशा अच्छा ही करता है, थोड़ा पाप भी करता है, थोड़ा अच्छा करता है। तो अच्छे का फल पहले कभी आता है, बुरे का कभी बाद में आता है, लेकिन जो अच्छा है वो साला कभी परमानेंट अच्छा नहीं है। ये चौधरी जो बोल रहा है ना बका बक भों 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 भों, बहुत गलती किया भैया। सबसे पहले तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारा, लोगों पर भरोसा किया, इससे बड़ा मूर्खता क्या हो सकता है। बचपन से ही मुझे धोखा दिया लोगों ने, फिर भी सुधरा नहीं, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। जो दूसरों पर भरोसा किया उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता है। मैं वैसे ही मूर्ख हूँ, तुम देख ले मेरा, उसका प्रायश्चित ही है, दर दर का ठोकर, दर दर का भिखारी, जितने भी लोग मिले सब धोखा दिया। अरे फिर कृष्णा यवन रेड्डी धोखा दिया, बताओ। अरे मरेगा साले, 2 दिन की ज़िंदगी में दोस्ती क्यों तोड़ा भाई। मैं तो तुम्हारा दोस्त था ही नहीं, मैं तो तेरा कुत्ता था। अरे कुत्ता था, साला कुत्ता को मार के भेज दिया रोड पर, तो धोखा खाया हूँ भाई। इसीलिए योगी आदित्यनाथ महान है, पुरुषोत्तम है, पाप की नगरी उसके दिमाग में नहीं है। बचपन से पवित्र थे, बहुत पवित्र छवि के व्यक्ति हैं, और पाप को नगरी में मिला दिया, डगरी डगरी दौड़ा दिया, मिट्टी मिला दिया, बर्बाद कर दिया। जो भी क्रिमिनल था सबको जगह पर पहुंचा दिया। 50% मारे गए, और जो 50% मरे हुए हैं वो गोली ठोक ठोक के उनको भी मारा। अब एक दोगला उसका नकल मारा, वो बोल दिया मैं अपोजिशन को ही मिट्टी में मिला दूंगा। ए अहंकारी साले, समझ जाओ। योगी आदित्यनाथ किसी अपोजिशन को मिट्टी में बोले, पाप को बर्बाद किया। आप भी सीखो उनसे, पाप को मिट्टी में मिलाओ, बेरोजगारी को मिट्टी में मिलाओ, ज्ञान दो लोगों को, पढ़ाओ लिखाओ, समझदार बनाओ। मिट्टी में मिलाना एक अच्छा डायलॉग है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये सोचो, यूनिटी की बात करो। ओम शांति।